ایک دور دراز پہاڑی پر ایک پرانی کھردری سلیب کھڑی تھی۔ ہاللویا! کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلو، میرا نام چکاو گوزی امانویہ ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی صلیب میں خوش آمدید، ایک نئی نشریات۔ پہلے آئیے ایک بار پھر آپ کو نیا سال مبارک کہیں، اور اس سال کو ایک شاندار سال قرار دیا گیا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے آپ اس سیارے کے کس کونے میں ہوں۔ خداوند، قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کا خدا، ہمارے رب اور نجات دہندہ حضرت عیسیٰ مسیح کا باپ، یہ سال آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے واقعی شاندار بنائے، حضرت عیسیٰ کے نام میں۔ امونیا۔ میں نے پچھلے سال کے آخر میں ہم سب کو اعلان کیا تھا کہ میں حال ہی میں ایک سفر پر تھا جو دسمبر کے ابتدائی حصے میں ایشیا کا سفر تھا۔ ایشیا کا سفر میرے لیے بہت کچھ لے کر آیا، اور میں ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پیغام کا عنوان ہے صلیب، ایک حقیقی خدا۔ ایک حقیقی خدا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک حقیقی خدا اپنے آپ کو اس پیغام کے ہر سننے والے کے دلوں میں ظاہر کرے، چاہے آپ اس سیارے کے کس کونے میں ہوں۔ آپ کو ایک حقیقی خدا کی معرفت حاصل ہو اور آپ اس کی خدمت کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی خواہش کریں جب آپ اس نشریات کو سنیں۔ حضرت عیسیٰ کے نام میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک دعا کا کلمہ بانٹیں۔ باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ ایک حقیقی خدا، عیسیٰ مسیح کا باپ، تمام چیزوں کا خالق۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے ہم سے اتنی محبت کی، اپنے حضرت عیسیٰ مسیح اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے بھیجا تاکہ ہمیں آپ کے ساتھ دوبارہ جوڑ سکیں۔ اس عظیم قربانی کے لیے آپ کا شکریہ۔ جب ہم اس نشریات کو جاری رکھتے ہیں تو برا کرم ہر ناظر، ہر سننے والے کی خدمت کریں، اپنے آپ کو ان پر ظاہر کریں تاکہ وہ آپ کو جان سکیں۔ حضرت عیسیٰ نے یوحنا باب 17 آیت 3 میں دعا کی۔ اس نے کہا، یہ زندگی ابدی ہے کہ وہ آپ کو ایک حقیقی خدا اور حضرت عیسیٰ مسیح کو جانیں جنہیں اپنے بھیجا ہے۔ یہی اس نشریات کا نتیجہ ہو سننے والوں کے دلوں میں۔ حضرت عیسیٰ کے نام میں آمین۔ تو میں اعمال کی کتاب سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم یہ آج ختم نہیں کر سکتے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آہستہ اور سوچ سمجھ کر پڑھوں۔ ہم یہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہیں اور ترجمے کی رفتار اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں تھوڑا آہستہ اور سوچ سمجھ کر پڑھوں گا تاکہ سب لوگ پیچھے رہ نہ جائیں۔ جس بھی زبان میں آپ بات کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھیں اور آپ کو مقدس صحیفوں کی باتوں کی واضح سمجھ حاصل ہو۔ تو اس ایشیا کے کچھ حصوں کے سفر پر میں نے بالکل ویسا ہی محسوس کیا جیسا کہ پولس رسول نے ایتھنز میں محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے لیے بائبل میں درج ہے۔ جب میں نے ہر قسم کی تصاویر، بتوں کی نقاشی اور معبد دیکھے جہاں یہ بت اور تصاویر رکھی گئی تھیں تو میرے اندر روحانی تحریک ہوئی، اور لوگ عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ چیزیں جو ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں۔ تو میں ہمارے لیے اعمال رسولوں کی کتاب سے باب 17 آیت 16 سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ برا کرم توجہ دیں۔
बाइबल कहती है, अब जब पौलुस एथेंस में इनका इंतजार कर रहा था तो उसके अंदर रूहानी तहरीक हुई जब उसने देखा कि शहर मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती में डूबा हुआ है। इसलिए उसने यहूदियों और दीनदार लोगों के साथ इबादतगाह में बहस की और रोजाना बाजार में इन लोगों के साथ बातचीत की जो इससे मिलते थे। फिर कुछ फलसफी, एपिक्यूरियों और स्टोक्स के इससे मिले और कुछ ने कहा, ये बकवास करने वाला क्या कहेगा। कुछ लोगों को वो अजीब खुदाओं का मुबल्लिग लगता था क्योंकि वो उनसे ईसा की तबलीग कर रहा था और क़ियामत, और उन्होंने इसे पकड़कर अरिविगुस के पास ले गए और कहा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नई तालीम जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो क्या है, क्योंकि तुम हमारे कानों में कुछ अजीब बातें ला रहे हो। हम ये जानना चाहेंगे, लिहाजा ये चीजें क्या मानी रखती हैं। क्योंकि वहां मौजूद तमाम एथेंस के लोग और गैर मुल्की अपना वक्त सिर्फ इसमें गुजारते थे कि आ तो कुछ नई बातें बताएं आ सुने। हैरत अंगेज लोग। आयत 22। फिर पौलुस मास हल के दरमियान खड़ा हुआ और कहा, ए एथेंस के लोगों, मैंने देखा है कि तुम हर चीज में बहुत ज्यादा खुराफाती हो। जब मैं तुम्हारी इबादतों के पास से गुजरा और तुम्हारी अकीदतों को देखा तो मैंने एक कुर्बानगाह देखी जिस पर यह तहरीर थी, नामालूम खुदा के लिए जिसकी तुम बेखबरी में इबादत करते हो, मैं तुम्हें इसका ऐलान करता हूं। ध्यान से सुनो। आयत 24 में कहा गया है, खुदा जिसने दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीजें बनाई, ये देखते हुए कि वो आसमान और जमीन का रब है, हाथों से बने हुए माबदों में नहीं रहता। तुम जानते हो, मैं ये दोबारा पढ़ना चाहता हूं। आयत 24 पौलुस में कहा, खुदा जिसने दुनिया बनाई और इसमें मौजूद तमाम चीजें, ये देखते हुए कि वो आसमान और जमीन का रब है, हाथों से बने हुए माबदों में नहीं रहता। ये बहुत अहम है कि हम ये बात जहन में रखें। जो खुदा आसमान और जमीन को बनाता है, वो हाथों से बने हुए माबदों में नहीं रहता। जो खुदा आसमान और जमीन और उनके अंदर मौजूद तमाम चीजों को बनाता है, वो हाथों से बने हुए माबदों में नहीं रहता। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते, और ये बहुत अहम है, तो मुझे पढ़ना जारी रखने दो क्योंकि ये किसी के जहन में गुजर रहा होगा। मेरे लिए अफसोसनाक बात यह है कि अगर हम इस वक्त तक इंतजार करें जब तक हम मर ना जाएं ये जानने के लिए कि कौन सही था या कौन गलत, तो शैतान जीत जाएगा। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होती। ध्यान से सुनो। हत्ता के मंतकी सोच भी हमें बताती है कि जिसने तमाम चीजें, आसमान, जमीन और जो कुछ हम देखते हैं बनाया, वो अब हाथों से बने हुए माबद के अंदर महदूद नहीं हो सकता। ये माबद कितना बड़ा हो सकता है कि वो एक को समो सके जो सब कुछ बनाता है। बाइबल कहती है कि आसमानों का आसमान भी आपको नहीं समो सकता। जब सुलेमान ने अपना माबद बनाया, इसे खुदा के लिए वक्फ करते हुए उसने कहा कि आसमानों का आसमान आपको नहीं समो सकता। ये माबद तो और भी कम है जो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो जो सब कुछ बनाता है वो हाथों से बने हुए माबदों के अंदर नहीं रहता। आयत 25 कहती है, ना तो वो लोगों के हाथों से इबादत किया जाता है जैसे कि उसे किसी चीज की जरूरत हो, ये देखते हुए कि वो सबको जिंदगी, सांस
اور تمام چیزیں دیتا ہے اور ایک ہی خون سے بنایا ہے تمام قوموں کے لوگوں کے لیے تاکہ وہ زمین کے تمام چہرے پر رہ سکیں اور اس نے پہلے سے مقرر کردہ وقتوں کا تعین کیا ہے کہ اور ان کی رہائش کی حدیں تاکہ وہ خدا کی تلاش کریں اگر خوش قسمتی سے وہ اس کے قریب پہنچ سکیں اور اسے پا سکیں حالانکہ وہ ہم میں سے ہر ایک سے دور نہیں ہے آیت 28 کیونکہ اسی میں ہم جیتے ہیں چلتے ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کچھ شاعروں نے کہا ہے کیونکہ ہم بھی اس کے بچے ہیں نسل کیونکہ جتنا پھر چونکہ ہم خدا کی نسل ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کی ذات سونے چاندی تا پتھر کی طرح ہے جو انسان کی مہارت اور آلات سے بنائی گئی ہو آئیے اسے دوبارہ دیکھتے ہیں آئیے اس آیت کو دوبارہ دہرائیں آیت 29 چونکہ اتنا ہی پھر جبکہ ہم خدا کی نسل ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کی ذات سونے چاندی پتھر کی طرح ہے جو فن اور انسان کی تخلیق سے بنائی گئی ہو آیت 30 اور اس جہالت کے زمانے پر خدا نے آنکھیں بند کی لیکن اب وہ ہر جگہ تمام لوگوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں وہ اس آدمی کے ذریعے دنیا کا انصاف کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے جس کی ضمانت اس نے تمام لوگوں کو دی تھی یقین دہانی کیا ہے کہ اس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا آیت 32 اور جب انہوں نے مردوں کی قیامت کے بارے میں سنا تو کچھ میں مذاق اڑایا اور دوسروں نے کہا ہم اس معاملے پر تم سے دوبارہ سنیں گے تو پولیس ان سے چلا گیا کچھ لوگ اس سے جڑ گئے اور ایمان لائے جن میں ایک دیونیسس اریوپگاٹ اور ایک عورت جس کا نام دمرس تھا اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل تھے یہ پڑھائی رسولوں کے اعمال باب 17 آیت 16 سے آیت 34 تک کی ہے تو اب جب میں ایشیا پہنچا جب میں ان جگہوں پر پہنچا بالکل پولس کی طرح میرا دل ہل گیا اب جانتے ہیں جب میں نے دیکھا یہ تمام نقش و نگار فن کے کام کندہ کردہ چیزیں جن کی لوگ عبادت کرتے تھے میں اداس تھا کیونکہ جیسا کہ پولس نے کہا خدا جس نے سب کچھ بنایا ہاتھوں سے بنائی گئی چیزوں میں نہیں رہتا خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے وہ اکیلا ہی خدا تھا اکیلا ہی خدا پھر اپنے آپ سے اس نے کہا ہو جائے اور چیزیں بن گئیں اس نے پہلے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس نے آسمانوں میں رہنے کا انتخاب کیا اور وہ کہتا ہے آسمانوں کا آسمان اس کا تخت ہے زمین کو اس نے اپنا پاؤں رکھنے کی جگہ بنایا ہے تو اگر مثال کے طور پر جیسا کہ بائبل کہتی ہے پوری زمین اس کا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ اب اس چھوٹے مندر میں کیسے رہ سکتا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو یہاں ایک اور ترجمہ کہتا ہے جب پولس ان کا انتظار کر رہا تھا ایتھنز میں تو وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ شہر بتوں سے بھرا ہوا ہے تو میں پوچھتا ہوں بت کیا ہے پولس کو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر کیوں پریشانی ہوئی تو بت کی لغوی تعریف کیا ہے لغت کی تعریف کے مطابق بت ایک تصویر دوسری مادی چیز ہے جو ایک دیوتا کی نمائندگی کرتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے ایک تصویر
دوسری मादी चीज जो एक देवता की नुमाइंदगी करती है जिसकी इबादत की जाती है। तो जब आपके पास किसी भी देवता की तस्वीर हो जिसकी लोग इबादत करते हैं तो ये एक बुत है। जब तक कि वो देवता खुदा नहीं है, ये एक बुत है। दर हकीकत आजकल लोग खुदा के मर्दों और औरतों को कुछ हद तक इबादत का दर्जा देते हैं। इस तारीफ के मुताबिक अंधी अकीदत, मोहब्बत या वफादारी। तो हमें यह ख्याल रखना होगा कि खुदा हमारे दौर में अलिफाला जैसे नबी को इतनी ताकत से इस्तेमाल कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि अलिफाला खुदा है। अलिफाला और बाइबल में आप ये दरियाफ्त करते हैं कि जब लोग रसूलों और यहाँ तक के फरिश्तों की इबादत करने की कोशिश करते हैं तो रसूल और फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम इंसान हैं तुम्हारी तरह के इंसान। फरिश्ते जो कहते हैं नहीं, सिर्फ यसू की इबादत करो, सिर्फ यसू की इबादत करो। तो मैं जोर देकर कहता हूं कि यहां तक कि चर्च में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानों के लिए इसी भी किस्म की इबादत और झुकने का दर्जा ना दे। हमें इबादत और झुकने को इंसानों के सामने रखने से बचाना चाहिए। हमें यह सिर्फ यसू मसीह के लिए महफूज रखना चाहिए और सिर्फ यसू मसीह के लिए, जैसा कि बाइबल और मुकाशिफा की किताब में किया गया। एक और लुग़वी तारीफ कहती है कि यह सिर्फ किसी चीज की एक तस्वीर या मुशाबहत है, लेकिन बगैर किसी हकीकत के, जैसे कि एक भूत। तो अब बुत परस्ती के बारे में बात करते हैं। आइए खुरूज बाब 20 की तरफ चलते हैं। जब खुदा ने बनी इसराइल के बच्चों के सामने जाहिर हुआ। खुरूज बाब 20 में आइए पढ़ते हैं कि खुदा ने उनसे क्या कहा। खुरूज बाब 20 आयत 1 से, और खुदा ने ये तमाम अल्फाज कहे कि मैं हूं खुदावंद तेरा खुदा जिसने तुझे मिस्र की सरजमीन से गुलामी के घर से निकाला। तो मेरे सवा किसी और खुदा की इबादत न करना। पहला जो खुदा ने उन्हें दिया, उसने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, देखो सुनो, मैं हूं खुदावंद तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें मिस्र की सरजमीन से गुलामी से निकाला। मैं वो शख्स हूं। वो अभी अभी मिस्र से निकले थे, गुलामी से, मिस्र की गुलामी से। ये 400 साल तक जारी रहा और वो मिस्र में 430 साल रहे और उनमें से तकरीबन 400 साल गुलामी में रहे। खुदा कहता है, देखो सुनो, मैं वो हूं जिसने तुम्हें इस गुलामी से निकाला। अब सुनो, जब उसने अपना तारुफ कराया तो उसने कहा, उनसे पहली बात ये कही कि तो मेरे सवा किसी और खुदा की इबादत न करना। ये पहली हिदायत है, ये पहली हुक्म है। फिर आयत 4 कहती है, तो अपने लिए कोई भी नक्शो निगार किसी चीज की मुशाबहत ना बनाना जो आसमान में है या जो जमीन के नीचे है या जो जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके सामने सजदा ना करना, ना ही उनकी इबादत करना, कि मैं तेरा खुदावंद एक गैरतमंद खुदा हूं। बाप दादा की खताओं का बोझ बच्चों पर डालना। तीसरी और चौथी नस्ल तक उन लोगों पर जो मुझसे नफरत करते हैं, और हजारों लोगों पर रहम करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे अहकाम की पैरवी करो। अब आइए ध्यान से सुने कि वो क्या कहता है। मेरे सवा किसी और खुदा की इबादत न करना। कोई भी नक्शो निगार ना बनाओ, या जो चीज आसमान में है या जो जमीन के नीचे है या जो जमीन के नीचे पानी में है, इसकी कोई मुशाबहत ना बनाओ। ये मत बनाओ। मेरे सवा किसी और खुदा की इबादत न करो। कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी मत बनाओ
जो कुछ तुमने आसमान में, जमीन पर और जमीन के नीचे देखा है, इसकी कोई भी नकल मत बनाओ। और फिर आयत 5, उनके सामने सजदा न करना, ना ही उनकी इबादत करना। तो जब कोई शख्स सूरज को देखता है और उसकी कोई चीज बनाता है जो सूरज की नुमाइंदगी करती है, इसकी नकल है, और उसे रख देता है और उसके सामने सजदा करता है और उसकी इबादत करता है। खुदा ने कहा तुम्हें चीजें नहीं करनी चाहिए, उनकी इबादत के लिए सजदा ना करो। तो पौलुस परेशान था क्योंकि वो पहले ही इन लोगों को जानता था। ये लोग हकीकी खुदा की इबादत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह वो इसमें नाकाम रहे और वो तस्वीर की इबादत कर रहे थे। इसलिए पौलुस परेशान था। अब जानते हैं, पहली बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो गौर से सुने। पैदाइश बाब 2 आयत 8 में उसने कहा, और खुदा ने इंसान को जमीन के मिट्टी से बनाया, और फिर जब उसने इस इंसान को बनाया तो वो आम मिट्टी में था। और खुदा ने इंसान में जिंदगी की सांस फूंकी और इंसान एक जिंदा रूह बन गया। तो इंसान को एक जिंदा रूह बनाने वाला वो खुदा का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ खुदा में ही जिंदगी है। खुदा जिंदगी का मंबा है, जिंदगी खुदा की है। हमें यह बात बहुत बहुत वाज़ेह तौर पर समझनी चाहिए। तो वो जिंदगी जो इससे आई और उसने इस तस्वीर में, इस मिट्टी में जो इसने बनाई, फूंकी, इस पर सांस फूंकी, ये इसकी अपनी जात से इंसान में आया। तो इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, गौर से सुने, एक ऐसा पहलू है जो खुदा से आया है और जो हमारे अंदर मौजूद है। अब ये वो खुदा का हिस्सा है जो उसने हम में से हर एक के अंदर रखा है। हर इंसान जिसके पास जिंदगी है, जिसके पास सांस है, उसके पास कुछ है जो खुदा से आया है। वो चीज खुदा की तलब करती है। वो चीज हकीकी खुदा की मौजूदगी की तलब करती है। ये खुदा के करीब जाना चाहता है, ये खुदा की इबादत करना चाहता है, ये चाहता है। अब जानते हैं खुदा के साथ ताल्लुक बनाना। बाइबल में यूहन्ना बाब 1 आयत 4 में कहा गया है, इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी इंसानों की रोशनी थी। अयूब ने अयूब बाब 33 आयत 3 और अयूब बाब 34 आयत 4 में कहा कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया, खुदावंद की सांस ने मुझे जिंदगी दी। सांस तो वो हिस्सा जो खुदा से आया है, वही है जो खुदा की तलब करता है और इबादत करने की ख्वाहिश रखता है। तो बुत परस्ती कहां से आई? मैं इससे अगले हफ्ते जारी रखूंगा, अगर ईसा वापस नहीं आए। गौर से सुने, खुदा ने गवाही दी ईसा को मर्दों में से जिंदा करके। ईसा सलीब पर दुनिया के तमाम गुनाहों को, आपका गुनाह, मेरा गुनाह, हर एक का गुनाह अपने ऊपर लिया। अब जानते हैं उसने इसे अपने ऊपर लिया और उसे कब्र में ले गया। और फिर जब वो मर गया, जब उसे सलीब पर कत्ल किया गया, 3 दिन बाद, ये दिखाने के लिए, ये आपके और मेरे लिए था कि उसे मसलूब किया गया। खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया। ईसा का मर्दों में से जिंदा होना पूरी दुनिया के लिए ये तस्दीक और यकीन दहानी है कि ईसा ना सिर्फ मसीह हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है। उसे देखो
आयत 31 में वो कहते हैं, अमाल बाब 17 आयत 31 में वो कहते हैं, क्योंकि इसने एक दिन मुकर्रर किया है जिसमें वो मसलूब हुआ, वो दुनिया का इंसाफ करेगा। इस आदमी के जरिए जिसे इसने मुकर्रर किया, जिसकी बाबत इसने तमाम लोगों को यकीन दिलाया कि इसने इसे मर्दों में से जिंदा किया, आप ईसा को अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं ताकि आप मौत से जिंदगी की तरफ मुंतकिल हों, ताकि आप खुदा के बच्चे बन जाएं, ताकि आप इन लोगों में शामिल हों जिनके लिए ईसा वापस आ रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप पत्थर या लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां पूजना बंद करना चाहते हैं और आप सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत करना चाहते हैं, ये सिर्फ ईसा मसीह के जरिए ही मुमकिन है कि आप ये कर सके, और खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा करके तस्दीक दी। अगर आप ईसा को रब के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं, मैं इसे अपने दिल से कह रहा हूं। मेरे बाद ये छोटी सी दुआ कहो। प्यारी आसमानी बाप, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं और मैं अपने गुनाह से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने ईसा मसीह, अपने बेटे को मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरने के लिए भेजा, और 3 दिन बाद अपने उसे मर्दों में से जिंदा किया। ए खुदावंद ईसा, मेरी जिंदगी में आप मेरा रब बनू, मेरा नजात दहिंदा बनू। अपने खून से मेरे गुनाहों को धो दो, मेरा नाम अपनी जिंदगी की किताब में लिख लो, और आज मुझे खुदा का बच्चा बना दो, क्योंकि इस वक्त मैं अपने दिल से ईमान रखता हूं कि खुदावंद ईसा है, और मैं अपने मुंह से इकरार करता हूं कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया है। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं। शुक्रिया यसू मुझे बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आपने वो सादा दुआ की और आप उसका मतलब समझते हैं तो मुबारक हो। आप मौत, जिंदगी, अंधेरे, रोशनी गुजर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ रुक जाएं। अपने पादरी से मिले, उन्हें बताएं, पादरी, मैंने गुनहगार की दुआ की है, मैं डुबकी देकर बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। यहाँ हम चर्च की तबलीग नहीं करते, हम यसू मसीह और उसकी मसलूबियत की तबलीग करते हैं, लेकिन हम खुदा की मुखलिस ईसाई चर्च के रुकन हैं, और ये दुनिया के 97 से ज्यादा ममालिक में है। अपने करीब किसी भी शख्स के पास जाएं, पादरी से मिले, उन्हें बताएं, और फिर हर बुध और हर हफ्ता यहाँ वापस आएं। हम क्या कर रहे हैं? हम मुहिम पर हैं। ये मुहिम क्या है? हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को वही मालूम हो जो आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को सबसे पहले यसू मसीह के बारे में और उसने सलीब पर इंसानियत के लिए क्या किया मालूम हो, और हम चाहते हैं कि यही इल्म पूरी जमीन को इस तरह भर दे जैसे पानी समंदर को ढांपता है। आपका इसमें क्या किरदार है? जैसे ही आपको इस नशरियात के बारे में मालूमात मिले, इसे अपने तमाम राबतों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसे जितना मुमकिन हो सके वसी पैमाने पर नशर करें, और उन सब को दावत दें कि वो नशरियात में शामिल हों, और फिर अब भी शामिल हों, और उन्हें कहीं कि वो अपने दोस्तों को बताएं जब वो उन्हें नशरियात करे। हमारे YouTube चैनल में शामिल होने और सब्सक्राइब करने के लिए ये मुफ्त है, सब्सक्रिप्शन मुफ्त है, और हमारी फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम नशरियात करें आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको ये मालूम होने से पहले, क्योंकि तमाम इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ये मालूम होने से पहले इस सैयारे पर 8 अरब इंसानों तक पहुंचा जा चुका होगा इस खबर के साथ। और अगर यसू अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए तो हम यहां दोबारा आएंगे, एक और रूहानी रोशनी देने वाले यसू मसीह की सलीब के साथ। और अब नशरियात करें, और तब तक हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यसू आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपको बरकत दे। अलविदा। एक दूर दराज पहाड़ी पर
ایک پرانی کھردری چیز کھڑی تھی اور جون